Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 5 of your class 5 science, that is safety rules and first aid. What do you mean by safety? Keeping ourselves away from harm is known as safety. Accidents can happen anywhere or anytime. You should be always careful. Safety आपको क्या बचाती है? आपको accident से बचाती है. So in this chapter we will study about safety. Next we will study about safety on roads. हम अपने roads पे हम कैसे safe रह सकते हैं. Next we will study about safety at home. How can we be safe at our homes? Next, we will study about our other safety rules, and next we will study about first aid. The first treatment given to an injured person before the arrival of the doctor is known as first. Here, mark a tick for the people who are doing the right thing and cross out the people who are doing the wrong thing. The boy is touching the press, that is wrong. Here, the boy is burning candle with cloth, that is also wrong. There, the man has cut his hand with the knife. That is also wrong. Here, the boy and the girl is moving on the zebra crossing. They are crossing the road from the zebra crossing. That is right. Now, safety क्या होता है? To keep safe, one must remain always careful. आपको अपने आप को safe रखने के लिए आपको careful रहना पड़ता है. Accidents happen due to carelessness. Accidents किसकी वजह से होता है? Carelessness की वजह से होते हैं. Accidents may happen anywhere, anytime, anywhere without giving any warning. कोई warning नहीं बिना भी हो जाते accidents. Children often get hurt at home in school. Children's hurt कहाँ पे होते हैं? Roads पे भी hurt हो जाते हैं, schools में भी, playgrounds में भी, and on the roads or in the schools. So most of the accidents occur due to carelessness. किसकी वजह से होते हैं accidents? Carelessness की वजह से होते हैं. Now how can you be safe at the roads? Safety on roads. First point, watch carefully the signal of a traffic light or the traffic policeman and always follow them. आपको ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए. ट्रैफिक अगर ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आपको ट्रैफिक पुलिसमैन को देखना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए. सेकेंड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. या तो आपको फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए या रोड की लेफ्ट साइड में. नेक्स्ट, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. आपको जेब्रा क्रॉसिंग से ये रोड क्रॉस करनी चाहिए. Zebra crossing is marked with broad white black strips. किससे मार्क्ड होती है? वो broad white black strips से मार्क्ड होती है zebra crossing. If there is no zebra crossing, cross road when it is clear of vehicles. अगर कोई zebra crossing नहीं है तो आपको सिर्फ roads जब भी क्रॉस करनी चाहिए जब आपके राइट में और लेफ्ट में कोई व्हीकल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस तक. Now move to the next page. Keep a safe distance from vehicles while from other vehicles while driving. अगर आपके कोई आगे व्हीकल है पीछे व्हीकल है तो आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए. नेक्स्ट, मेक श्योर दैट ऑल पार्ट्स ऑफ योर व्हीकल्स वर्किंग रेगुलर प्रॉपरली. जो आपको भी मेक श्योर करना चाहिए आपकी बॉडी आपकी व्हीकल के सारे पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हो. नेक्स्ट, नेवर फ्लाई अ काइट नियर द रोड. नेवर प्ले विद द बॉल ऑन द रोड. आपको बॉल भी इससे भी नहीं खेलना चाहिए रोड पे, ना ही आपको काइट्स फ्लाई करने चाहिए रोड पे. नेक्स्ट, ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट इन द कार. आपको अपनी सीट बेल्ट टाई करनी चाहिए कार में. नेक्स्ट, नेवर पीप आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. आपको मूविंग व्हीकल से आपको बाहर नहीं देखना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट गेट इन और गेट डाउन अ मूविंग व्हीकल. आपको ना तो मूविंग व्हीकल में जाना चाहिए ना ही उसमें से उतरना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस. आपको फुटबोर्ड पे स्टैंड नहीं करना चाहिए मूविंग बस के. नेक्स्ट, ऑलवेज wear helmet while riding a scooter or motorcycle. जब आप मोटरसाइकिल राइड करो या स्कूटर्स राइड करो, you should always wear your helmets. We see many signals on the road. These signals are road signals or traffic signals. We also learn and follow these signals. हमें learn करना चाहिए और इन signals को follow करना चाहिए. This is the signal of no horn. This is the signal work in progress. This is the signal of no parking. This is the signal of no U-turn. This is the signal of one way. This is a signal of school ahead. This is a signal of no right turn. This is a signal of no left turn. This is a signal of zebra crossing. Now, safety at home. How can you be safe at your homes? Keeping everything at proper place. आपको हर चीज उसके proper place पे रखनी चाहिए. You can be safe at that situation. Do not touch sharp objects. आपको sharp objects को touch नहीं करना चाहिए. Never play with lighted matchsticks or firecrackers. आपको lighted matchstick और firecrackers से नहीं खेलना चाहिए.
Next, always disconnect all electric points and gadgets like heaters, iron, etc. when they are not in use. आपको हमेशा डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को, जैसे हीटर्स हो गए, आयरन्स हो गए, जब आप उनको यूज नहीं कर रहे. चेक इफ द गैस इज लीकिंग, स्विच ऑफ द नॉब एंड रेगुलेटर. आपको चेक करना चाहिए कि गैस लीक तो नहीं कर रही, आपको नॉब को, रेगुलेटर को स्विच ऑफ करना चाहिए. Next, never leave water on slippery things like floor, lying on the floor, or any. Never leave water on any slippery thing lying on the floor. आपको floor पे ना तो कोई water छोड़ना चाहिए, ना कोई slippery thing. Next, never play with electrical appliances. आपको electrical appliances से भी नहीं खेलना चाहिए. Next, never eat any unknown thing or medicines. ना तो आपको कोई unknown things या कोई medicines भी नहीं खानी चाहिए. Next, do not run or jump on stairs and railings. आपको run और jump नहीं करना चाहिए अपने stairs पे और railings पे. Here, other safety rules. What are your other safety rules? First, always play safe games. आपको हमेशा safe games play करने चाहिए. Next, do not play in a busy street. आपको जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए. Accidents can happen over there. Do not pull or push your friends while playing. जब आप खेल रहे हो आपको अपने friends को push या pull नहीं करना चाहिए. Do not swim alone. आपको अकेले swim नहीं करना चाहिए, एक adult का supervision रखना चाहिए. Never talk to strangers and do not take things from strangers. आपको चीजें नहीं लेनी चाहिए strangers से और ना ही उनसे बातें करनी चाहिए. Always wear rubber slippers when touching electrical switches or gadgets. आपको rubber slippers पहनने चाहिए जब आप electrical switches को या gadgets को touch कर रहे हो. Do not eat spoiled food. आपको spoiled food को नहीं खाना चाहिए. Do not wear loose, flowing and synthetic clothes in the kitchen. जो आपके clothes flow कर रहे होते हैं या loose होते हैं, synthetic होते हैं, आपको kitchen में नहीं wear करने चाहिए. Do not take expired medicines. आपको expired medicines नहीं लेनी चाहिए. Here, let's talk about first aid. What do you mean by first aid? Whenever an accident happens, the injured person must be given an immediate medical aid before he is taken to the hospital. This is called first aid. It is very essential and can save the life of injured person. ये first aid बहुत ज़्यादा essential होता है और एक injured person की life को बचा सकते हैं. You already know about the first aid to be given for minor cuts and wounds, nosebleeds and minor burns. Some more first aid tips are given here. आपको ऑलरेडी पता है कि माइनर कट्स पे, नोज ब्लीडिंग पे या वाउंड्स पे आपको माइनर बर्न्स पे क्या लगाना चाहिए. अब हम कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं. नाउ फ्रैक्चर्स में आपको कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए. फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन. जो आपके बोन्स में क्रैक आ जाता है या ब्रेक हो जाता है. सेकंड, टेक अ मैगजीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड. आया तो आपको मैगजीन लेनी है, कोई पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, वुड और आप पिलो एंड टाई इट अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट. और वो आपको टाई कर देना है फ्रैक्चर्ड पार्ट के अराउंड. दिस एक्ट एज अ स्प्रिंट. किसकी तरह एक्ट करेगा? एक स्प्रिंट की तरह एक्ट करेगा. दिस प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन. और ये प्रिवेंट करेगा आपके मूवमेंट को ब्रोकन बोन के. नेक्स्ट, व्हेन अ बोन ऑफ द हैंड इज ब्रोकन. जब आपके हैंड की बोन ब्रोकन हो जाती है, मेक अ स्लिंग. आपको स्लिंग बनाना है यूजिंग अ क्लॉथ और अ बैंडेज. जो किसकी हेल्प से? क्लॉथ की या बैंडेज की हेल्प से. The sling gives support to the hand and prevent its movement. वो आपके hand को support provide करेगा sling और आपके prevent करेगा movements को. Next, when fracture is in the leg, जो आपका fracture leg में होता है, tie a splint around the fractured leg. आपको एक splint tie करना है fractured leg के. Do not allow the patient to move his her leg at all. आपको patient को allow नहीं करना कि वो अपने leg को move करे. Next, the patient must be taken to the hospital immediately. और patient को immediately hospital ले जाना चाहिए. Now burns. Burns में आप first aid कैसे दे सकते हो? Severe burns in case of severe burns, take the patient to the doctor immediately. आपको immediately डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए patient को. Severe burns need special care. जो severe burns होते हैं उन्हें special care लगाना देना होता है. Sometimes blisters are found in the burn part. Blisters मिलते हैं burn part में. They should not be pricked. उन्हें आपको prick नहीं करना चाहिए. छाले जो होते हैं. Cover the burn area with a clean piece of cloth to protect it from germs and also from dust particles and insects. आपको burnt area को cover करने देना चाहिए जो piece of cloth से या फिर bandages से to protect them from germs. जिससे आपको germs से protect कर सको उन्हें, या फिर dust से या small particles of dust or insects. Now move to the next phase, chemical burns. When the burns is caused by chemical like acid, wash the affected area with plenty of water to remove the chemical.
अच्छे से वॉश कर देना एरिया को प्लेंटी ऑफ वाटर से, जैसे एसिड से बंद हो जाता है तो दे गिव ए फर्स्ट एड एज ऑल द अदर वंस। वो देन फिर आपको क्या करना चाहिए, देन गिव फर्स्ट एड और एज फॉर द अदर वंस, आपको फर्स्ट एड देनी चाहिए अदर वंस की तरह ना। एनिमल बाइट, एनिमल बाइट होता है तो क्या करना चाहिए, the saliva of animal like dogs, cats and monkeys contain viruses of a very very dangerous disease called rabies। जो सलाइवा होता है डॉग्स का, कैट्स का, मंकीज का, उसमें क्या होता है, वायरसेस होते हैं, बहुत सारे डेंजरस वायरस होते हैं, दैट इज रेबीज। When these animal bites someone, the virus enters the victim body through the animal's saliva। जो एनिमल्स के सलाइवा से क्या होता है, वायरस एंटर हो जाता है विक्टिम की बॉडी पे। दे कॉज रेबीज टू द विक्टिम। वो क्या कॉज करता है, रेबीज कॉज करता है विक्टिम को। पॉइजनस एनिमल्स लाइक स्नेक्स आर ऑल्सो डेंजरस। जो आपके पॉइजनस एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स हो गए, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इफ दे बाइट वन कैन लीड टू डेथ। अगर वो बाइट कर जाते हैं तो आपको डेथ भी, और किसी की भी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट्स इमीडिएटली। तो एनिमल्स बाइट को ट्रीट करना इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एड फॉर डॉग बाइट। आप डॉग बाइट को फर्स्ट एड कैसे दे सकते हो, वॉश द बाइटन पार्ट विथ सोप वाटर टू वॉश अवे जर्म्स। आपको वॉश कर देना चाहिए बाइटन पार्ट को, जिससे जर्म्स वॉश अवे हो जाए। सेकेंड, अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑन द वाउंड। आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है वाउंड पे, दिस वुड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन नहीं होंगे। थर्ड, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। आपको विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना इमीडिएटली। तो डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन। डॉक्टर क्या देगा उनको, एंटी रेबीज इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। आप फर्स्ट एड कैसे दे सकते हो स्नेक बाइट के लिए। When a poisonous snake such as cobra or crate bites someone, it injects poison to the victim body। वो क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है पॉइजन किसके, विक्टिम की बॉडी में। दिस पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट्स द हार्ट। वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है ब्लड के थ्रू, और कहाँ इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है। नाउ इन केस ऑफ स्नेक बाइट डू द फॉलोइंग। अगर स्नेक बाइट होता है आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट, do not move the victim to prevent the poison to spread in the victim body। आपको विक्टिम को मूव नहीं करना चाहिए, जैसे फिर मूवमेंट होगी तो ब्लड फ्लो करेगा तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्लाई टाइट बैंडेज जस्ट अबाउट अबव द कट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। जहाँ भी बाइट हुआ उसी के ऊपर बैंडेज बहुत टाइटली टाई कर देनी चाहिए, जिससे ब्लड फ्लो ना हो। नेक्स्ट, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। और विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इमीडिएटली। डॉक्टर में गिव एंटी वेनम इंजेक्शन। डॉक्टर क्या देता है, एंटी वेनम इंजेक्शन लगा देते हैं। नेक्स्ट, सो that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.